তুরস্কের সবথেকে শক্তিশালী বোরাখান মিসাইল বাংলাদেশের হাতে আসছে। অনেকে বলছেন এই অস্ত্র নাকি লুকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের জমদূত বাংলাদেশের হাতেই আছে, এমনটাই বলা বলি হচ্ছে সব মহলে। কারোর রক্তচক্ষু আর সহ্য করবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি উस्मान। আমি इकरा। तो गाइस आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दूं। वीडियो का जो टाइटल है वो है जी तुर्की म्यांमार के जिगर को निशाना बनाने के लिए बांग्लादेश को बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पास ये मिसाइल मौजूद है। और क्यों बांग्लादेश जो है वो म्यांमार पर हमला नहीं कर रहा, और अगर बांग्लादेश म्यांमार पर हमला करता है तो कहा जाता है कि बांग्लादेश कुछ मिनटों में, क्या कुछ सेकंड्स में म्यांमार को खत्म कर सकता है। तो उसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश को, चाइना ने बांग्लादेश को FK-3 मिसाइल भी दे दिया है, जिसकी वजह से उस पे हम देखेंगे कि उसके क्या मतलब के तरीकाकार है उसको चलाने का, और उसकी क्या जरूरत हो सकती है इन केस अगर जंग होती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोगों ने हमारे साथ वीडियो में बने रहना है और वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे आपस में बातें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। তুরস্কের সবথেকে শক্তিশালী বোরাখান মিসাইল বাংলাদেশের হাতে আসছে। অনেকে বলছেন এই অস্ত্র নাকি লুকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের জমদূত বাংলাদেশের হাতেই আছে, এমনটাই বলা বলি হচ্ছে সব মহলে। কারোর রক্তচক্ষু আর সহ্য করবে না দেশটি। মিয়ানমার বাংলাদেশের সহ্য শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। মানবতা দেখাতে পছন্দ করে বাংলাদেশ, তবে আর সেটা দেখাতে নারাজ বাংলাদেশ মিয়ানমারের ক্ষেত্রে। চীন তুরস্ক থেকে ভয়ানক অস্ত্র বাংলাদেশের হাতে আসার কথা রয়েছে, যদিও অনেকেই বলছেন এই অস্ত্রগুলো নাকি বাংলাদেশের হাতেই রয়েছে। তুড়ি মেরে উঠবে শত্রু ঘাঁটি। তবে কি এবার জব্দ হবে মিয়ানমার? আন্তর্জাতিক মহলে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে। তুরস্কের অত্যন্ত গোপন এবং কার্যকরী একটি অস্ত্র হল বোরাখান ব্যালিস্টিক মিসাইল। এই মিসাইল হাতে পেতে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা তুরস্কে কম হাঁটাহাঁটি করেননি বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও বহু দিন থেকেই তুরস্ক বাংলাদেশে অস্ত্র বিক্রিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাংলাদেশের হাতে ইতিমধ্যেই নাকি চলে এসেছে ভয়ঙ্কর বোরাখান ব্যালিস্টিক মিসাইল। অনেকে আবার বলছে বাংলাদেশ এই মিসাইল কিনে গোপনে কোনো এক স্থানে রেখে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মায়ানমারের বিরুদ্ধেই এই অস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বোরাখান এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আর বাংলাদেশ পেলে কেনই বা তা গোপন করে রাখতে চাইবে? এই অস্ত্রে এমন কি রয়েছে? রাশিয়ার ইস্কান্দার ব্যালিস্টিক মিসাইলের সঙ্গে বোরাখানের তুলনা চলে। সম্প্রতি ইউক্রেন রাশিয়ার সংঘাতে রাশিয়া ইউক্রেনের বেশ কিছু জায়গা গুঁড়িয়ে দিতে এই ধরনের মিসাইল ব্যবহার করা হয়। মূলত এটি এক ধরনের ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, যা মুহূর্তে শত্রুদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তুরস্কে এই মিসাইলকে বলা হয় বোরা, তবে রপ্তানির সময় নাম বদলে যায় খান। যদিও আন্তর্জাতিক মহলে এটি বোরাখান নামে বেশি পরিচিত। এটি তৈরি করেছে তুরস্কের মিসাইল এবং গোলাবারুদ নির্মাতা রকস্টান। বাংলাদেশ এর আগেও বহুবার রকস্টানের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র কিনেছে, যার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল আর্টিলারি TRG-300 মাল্টিপল রকেট সিস্টেমগুলো। দিনের পর দিন বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে, পাশাপাশি অস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়ছে, যা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা ইঙ্গিত তো বটে। বোরাখানের ওজন প্রায় 3000 কেজি। এটি একাই প্রায় 570 কেজি বিস্ফোরক বহন করতে পারে। এটা দু ধরনের বিস্ফোরক বহন করতে পারে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত্রু শিবিরগুলোকে ধ্বংস করার জন্যই বহন করতে পারে ফ্র্যাগমেন্টেশন ওয়ারহেড। শত্রু দেশের বড় কোনো বিল্ডিং নিমেষে গুঁড়িয়ে ভেঙে দিতে পারে বোরাখানের হাই এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেড। এক্ষেত্রে তুরস্ক নিজেদের জন্য যে ভ্যারিয়েন্টগুলো তৈরি করে তার রেঞ্জ প্রায় 200 থেকে 740 কিলোমিটার।
কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে এই ভেরিয়েন্টগুলোর রেঞ্জ থাকে 80 থেকে প্রায় 300 কিলোমিটার। বাংলাদেশ যদি বোরাখান হাতে পেয়ে থাকে বা পায়, তাহলে বলাই যায় ভয়ঙ্কর অস্ত্র রয়েছে বাংলাদেশের হাতে। মিয়ানমার তুড়ি মেরে উড়ে যাবে, আন্তর্জাতিক মহল এমনটাই দাবি করছে। শুধুমাত্র তুরস্ক থেকে নয়, চীন থেকেও বাংলাদেশের হাতে ব্যাপক সব অস্ত্র আসছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা থামাচ্ছে না সামরিক ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে চীন থেকে বাংলাদেশে চলে আসতে পারে FK-3 মিসাইলও। 2013 সালে চীনা সরকার সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ্যে এনেছিল। এই সমরাস্ত্রের কথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকাশ করলেও এটি কেনা হবে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের উপর। কয়েক বছর আগে সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল চীনের এই অস্ত্র FK-3। সেই সময় চীন থেকে এই ভয়ঙ্কর বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছিল সার্বিয়া। FK-3 সমস্ত রকম আবহাওয়ায় দুর্দান্ত কাজ করে। এটি মূলত মাঝারি থেকে দীর্ঘ পাল্লার সারফেস টু এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম, যা জটিল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পরিবেশে মিশন চালাতে সক্ষম। এটি ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট, ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল, কৌশলগত এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল এবং হেলিকপ্টার সহ লক্ষ্যবস্তুকে সহজেই বাধা দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের সাথে তুলনীয় একটি মাঝারি উচ্চতার বিমান প্রতিরক্ষা অস্ত্র হিসেবে FK-3 ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যুদ্ধ বিমান এবং বোমারু বিমান সহ বিমানের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি শত্রু ঘাঁটিকে নির্ভুলভাবে টার্গেট করতে পারে। আর তুরস্ক আর চীনের এই দুটো ভয়ঙ্কর অস্ত্র যদি বাংলাদেশের হাতে থাকে, তবে মিয়ানমার তো সত্যিই তুড়ি মেরে উড়ে যাবে। विशेषज्ञ মহলে এমনটাই आलोचना। जी गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि चाइना के मतलब कि बांग्लादेश के पास जो है वो एक मिसाइल जिसे कि बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है वो ऑलरेडी था। तो उसके अलावा जो है चाइना ने उनको जो मिसाइल दिया है FK-3 वो भी बहुत पावरफुल मिसाइल है। कहा जा रहा है कि जो FK-3 है वो जो है चीज को डिटेक्ट करके किसी एयरक्राफ्ट को या किसी भी चीज को डिटेक्ट करके उसके ऊपर सीधा वो जाके गिर सकता है या हमलावर को मतलब कि खत्म कर सकता है। तो ये जो दोनों ही मिसाइल हैं बांग्लादेश के पास, ये बांग्लादेश की ताकत को और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश के पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी बांग्लादेश जो है वो पुरअमन तरीके से बैठा हुआ है। देखा जाए तो बांग्लादेश अगर थोड़ा से भी तैश में आता है तो बांग्लादेश को करण अगर थोड़े से भी तैश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो अगर वो ये दोनों मिसाइल चला देते हैं तो नो डाउट म्यांमार का जो है वो बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो उस्मान से पूछे कि उस्मान क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे जी, में। जैसा कि उनके पास बांग्लादेश के पास 2 मिसाइल आ चुके हैं और जैसा कि उन्होंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये मिसाइल जो है ये म्यांमार को मतलब घंटों में नहीं मिनटों में खत्म कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश चाहे तो म्यांमार को मिनटों में खत्म कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश अभी चुप बैठा है और मतलब अभी देख रहा है कि म्यांमार क्या करता है। अगर म्यांमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली बांग्लादेश को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, तो देखा जाए कि म्यांमार जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है। हर मुल्क, हर कंट्री जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और देखा जाए तो बांग्लादेश के पास जिस तरह के मिसाइल आ रहे हैं, जैसे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, कहा जा रहा है कि ये जब रूस और यूक्रेन की वार हुई थी उसके दरमियान भी ये यूज किया जा चुका है और इसकी जो रेंज है वो 300 मीटर तक, किलोमीटर तक है। तो देखा जाए तो वाकई ही ये दोनों जो मिसाइल है बहुत जबरदस्त किस्म के मिसाइल हैं और ये मिसाइल जिस भी कंट्री के पास हो नो डाउट कि वो बहुत ही पावरफुल है। और देखा जाए तो बांग्लादेश जो है ना वो अपनी पावर को मतलब कि म्यांमार को शो नहीं करवा रहा। वो मतलब कि चाहे तो एक वो कहते हैं ना कि मिनटों में नहीं सेकंडों में उस चीज को खत्म कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश जो है पुरअमन तरीके से ये बात म्यांमार के साथ अपने तल्लुक जो है वो इस तरह के नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि बांग्लादेश पुरअमन पसंद मुल्क है। जहां तक देखा जाए तो उन लोगों में इंसानियत है तो वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे। अगर इंसानियत नहीं होती तो जिस तरह म्यांमार ने बांग्लादेश को आए रोज तंग करके उनकी जो सरहदों पे है वहां पे मतलब मिसाइल गिरा के कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करके बांग्लादेश को परेशान किया हुआ था। अगर कोई और कंट्री होती, कोई और मुल्क होता, कोई और सियासतदान होता तो अब तक वो जंग शुरू कर चुका होता। लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश ने अभी तक ये जंग शुरू नहीं की। बांग्लादेश शुरू से ही कहता आ रहा है कि बैठ के टेबल टॉक कर लो, डायलॉग्स के जरिए ये मामला हल हो जाए,
नो डाउट कि बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, नो डाउट कि बांग्लादेश के पास बहुत ही मॉडर्न किस्म के इक्विपमेंट आ चुके हैं, नो डाउट कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अब म्यांमार को खत्म करना चुटकियों का खेल है। सही। लेकिन बांग्लादेश अगर पुरअमन तरीके से बैठा है, बांग्लादेश के हुक्मरान जो है वो चाहते हैं कि नुकसान ना हो, क्योंकि वो जहाँ तक हम लोग फील कर रहे हैं कि वो इंसानियत के नाते चाह रहे हैं कि नुकसान ना हो, म्यांमार के साथ बैठ के मामला हल हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए कि म्यांमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो बांग्लादेश को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और जब वो स्टेप लेंगे तो सब लोगों के सामने है कि म्यांमार की हार पक्की है। ऐसे ही है। हर बंदे को नजर आ रहा है कि जिस तरह बांग्लादेश के पास हथियार आ चुके हैं, जिस तरह के बांग्लादेश के पास मिसाइल आ चुके हैं, दूसरी कंट्रीज जिस तरह बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, और म्यांमार को देखा जाए तो वो अकेला रह चुका है। म्यांमार बहुत वीक हो चुका है, वहाँ पे ग़िज़ा की इतनी किल्लत हो चुकी है कि वहाँ के हुक्मरान अपनी रियाया से कह रहे हैं कि आप लोग कम खाओ, लेकिन अगर वो कम खाएंगे तो उनमें उतना वो बंदा कुव्वत नहीं रहेगी, वो बंदा इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जब उनकी अपनी मुल्क के लोगों के पास इतना वो स्ट्रांगनेस नहीं होगी और वो उनमें इतनी कुव्वत मदावत नहीं होगी तो वो किस तरह लड़ सकते हैं। मतलब जंग तो होती है बराबरी की, लेकिन देखा जाए तो म्यांमार जो है वो अब नीचे जा चुका है और बांग्लादेश जो है वो ऊपर आ चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आगाह करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम लोग तो ऑलरेडी ही आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप लोगों के भी प्यार की, सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमें अपना प्यार, ज्यादा से ज्यादा अपनी सपोर्ट दीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय।